to know on my journey a bit, and I'll take any questions you have. Like I decided on doing MBA second year. I enrolled with IMS. I wasn't very regular with my studies. I generally I am not very what do you call it? I didn't do all the homework and all those kind of things. But one thing I always had was a lot of curiosity. I had taken part in a lot of extracurricular activities. So here I was part of the quizzing team, the MUN team, the British Parliamentary debate team. So I was the whip for the BPD team. Uh, so as you can see, when Sir was giving his points, I had a rebuttal for all of them because that's what I like doing. So I think curiosity for you is very important. So curiosity in general. So it won't be like you read on the budget and वहाँ पे budget का topic आ गया और तुम बोल दोगे. मतलब you should have knowledge of anything and everything under the sun. मतलब कुछ भी तुम्हें हर चीज इंफ्यूज करनी चाहिए कि मतलब अगर तुम कुछ आज सुन के जा रहे हो तो तुम जाके घर जाके उसको पढ़ोगे मतलब ये क्या बोल रहा था इसके अंदर कुछ लॉजिकल बात है कि नहीं क्या है something like that. So I surprisingly I always thought I'll receive low 90 percentile. Surprisingly I got 96.16. I had calls from SPJN, I had calls from MDI, and other colleges were in the low spectrum. So these were my two main calls. NM and all also I had cleared. So in MDI, I was always very good at talking and sharing knowledge. Uh, I had the second lowest percentile in my college. So as he mentioned that average was high 98s, median was 99.1 something. My roommate had 99.45. The person living in the next room had 99.9 percentile. So when you hear all this कि मतलब IIT से लोग आ रहे हैं एंड दिल्ली के लोगों से हम तो इंफीरियर होंगे उनको ज़्यादा पता होगा आई ऑलवेज हैड दीज थिंग्स इन माइंड के मतलब व्हेन आई गो टू एन इंटरव्यू में मतलब what do I have which they don't have. They have much more knowledge than me. They have far higher qualification. They have work ex and all. But जब आप वहां पे जाके जीडी में बैठते हो तब आपको रियलिटी पता चलती है मतलब 90% of the people don't have what it takes to what you all had come here and speak right. So मतलब वहां से उठ के यहाँ पे आके बोलना ही चाहे आपका पूरी नॉलेज नहीं है that in itself is a very big point to you. ठीक है मतलब I saw that most of the people were very shy. They didn't want to come out and speak. This is 50% people. 50% people were very smart. Few were a lot smarter than I could ever be. Right. So मतलब ये वाली जो thought process है ना इसको तुम निकाल दो बिल्कुल जो मेरे अंदर भी था कि मतलब मुझे नहीं आता मैं औरबिंदो में हूँ वहाँ पे श्री राम कॉलेज के लोग होंगे वहाँ पे IIT दिल्ली के लोग होंगे ये सब होंगे तो मेरे साथ जो लोग थे वो IIT के भी थे श्री राम के भी थे बट इन दी एंड सब सेम प्लेसमेंट में बैठते हैं कोई फर्क नहीं है उसके अंदर कंपनी वाले जो बैठे हैं उनके लिए इट्स जस्ट लाइन ऑन द सीवी that you did your BTech from IIT Delhi. It doesn't matter at all. If you have WorkX, it matters a little if you're going into the tech domain, right? So I joined MDI. Fortunately, I was able to convert MDI. After that, what happens was if you talk about pure bookish knowledge, I say that I had a lot more of it when I was in BCom than I have right now. I always used to score in accounts and all. Sanjay sir पढ़ाते थे जो. I always used to score more than 98 in semester exams. And because of bad handwriting, I always used to get very low in the theoretical exams. So, but MBA में जाके आपकी मैं मतलब सेल्फ स्टडी मैंने 20 घंटे करी होगी पूरे 2 साल में
क्योंकि मेरे को अकाउंट्स आता था, बाकी कुछ चीज करने की इतनी जरूरत नहीं थी। वहां पे रोज क्या हो रहा है, आपको एक केस स्टडी दी है, आप केस स्टडी पढ़ के जाओ, वहां पे मेरे दाने जैसे लोग बस बैठे हैं एंड वो डिस्कस कर रहे हैं, इसके अपना ओपिनियन रख रहे हैं उसके अंदर। व्हाट इज अ केस स्टडी? केस स्टडी में होगा कि मतलब this company, these are real cases, and generally we used to have Harvard Business Review cases. So उसके अंदर this company went through this situation, these are the points, the manager has these options, what should he do, right? So those are the kind of situations you will end up in life in, not only in when you join a job, in your business, in general in your dealings with life, right? So वहां पे हम 1.5 घंटा बैठ के बस ये डिस्कस करते थे कि यार इसमें क्या क्या कर सकता है वो, ठीक है, एंड यू हैव टू फॉर्म अ कंक्लूजन, एंड 90% ऑफ द एमबीए वाज जस्ट डूइंग दिस। सो मतलब ऐसे कुछ वो पढ़ाई नहीं थी, पढ़ाई जो थी वो यहीं पे हो जाती है। वहां पे तुम बस अपना दिमाग का बत्ती जला रहे हो, तुम सोच रहे हो सारा टाइम कि यार ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, ठीक है। तो जैसे दानिश बता रहा था कि योर leisure time is also talking about all these things. So रात को 12 बजे 1 बजे हम सब वॉक करने जाते थे कैंपस में, कैंटीन पे बैठते थे, किसी के कमरे में बैठते थे, खेलते थे। सो डिस्कशंस हमेशा बस यही होती थी कि यार ये वाला बिजनेस में ये हो रहा है, इसकी वैल्यूएशन ऐसे है, ये दिस इज अंडर बूम, ये वाला स्टॉक खरीद लेना चाहिए, ये डूबा हुआ है। सो डिस्कशंस आर ऑलवेज on that side of the spectrum, right? So when I joined so how many of you want to do a job? So what do you look for in a job? Anyone? क्या करना चाहते हो? opportunities to learn. Great opportunities to learn, मतलब पैसे के बाद आएगा वो वैसे। Obviously, हाँ, great opportunities to learn, ओके, एंड लर्न करके मतलब क्या फायदा, मतलब कि मतलब अगर तो कभी स्टार्टअप करने का सोचे या फिर कुछ भी जॉब में आपको जो भी लर्न आएगा आपको काम ही आता है। anyone else? Experience and practical knowledge. So generally what will happen is so हर कंपनी के अंदर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। तो यूनिलीवर जो है वो पंजाब में लोकल कॉलेजेस से भी हायर करती है, वो यहाँ IMI दिल्ली से भी हायर करती है, वो IMA से भी हायर करती है। सो माय सिस्टर डिड हर MBA फ्रॉम IIM कैलकाटा, तो उसके अंडर MBA करे हुए ही 50+ एज ग्रुप के लोग थे, एंड शी वाज 20 समथिंग व्हेन शी जॉइंड। So she was handling some 20 MBA grads who were in the organization for 30 years. So what depends is कि तुम organization में कहाँ join करते हो, तुम्हारे को क्या growth opportunity मिलती है, ठीक है। तो for example I take HSBC के अंदर भी बाकी colleges से भी hire करते हैं, MDI से भी करते हैं, अहमदाबाद से भी करते हैं। There are different bands you join at, right? So if you join from, let's say, a tier 2 college जिसका रैंक 20 से 30-40 के अंदर है, you always join in band 7 or band 8. My job was a band 6, right? So when I join, I pick up the phone and I talk directly to the CFOs of the company. So to give you an example, currently what I do is I handle the MNC portfolio with an RM. So the portfolio we have, so I work in international subsidiary banking. International subsidiary banking में होता है कि तुम अपने पेरेंट एंटिटी है उसकी सब्सिडरी जो है उसका तुम रिलेशनशिप इंडिया में हैंडल कर रहे हो। तो इंटरनेशनल सब्सिडरी बैंकिंग का अंदर में जो उनके CFO हैं, CEO हैं, उनसे डायरेक्टली रोज बात करता हूँ, ठीक है। कोई उसके अंदर ये नहीं है कि आई हैव टू गो थ्रू द चेन और व्हाट, आई हैव टू पिक अप द फोन, आई हैव टू कॉल हिम, आई हैव टू से सर ये हो गया है, मेरे को ये डॉक्यूमेंट चाहिए, मेरे को इतने पैसे आपको भी ट्रांसफर करने पड़ेंगे, इतना ही होगा। सो योर एक्सपोजर इज फार ग्रेटर देन इट वुड बी एनीवेयर एल्स। सो जनरली दीज आर 300 crore 400 crore plus go up to a few thousand crore turnover वाली MNCs। तो तुम्हारा एक्सपोजर जो और कहीं हो सकता है उससे बहुत ज्यादा होगा।
एंड ऑफ कोर्स ये मतलब for growth opportunities you won't find any growth opportunity anywhere else जहाँ पे तुम इतना ग्रो कर सकते हो. So there are two things I see कि मतलब जो लोग प्रॉस्पर करते हैं. फर्स्ट है यू आर वेरी गुड एट टेक. टेक के अंदर यू नॉट IIT दिल्ली के अंदर भी 5 लाख का पैकेज भी मिलता है और 2 करोड़ का भी मिलता है. 2 करोड़ वाला पैकेज वाले होते हैं जो मतलब जिनका एक्चुअल में पैशन है, वो बैठ के सारा दिन कोड करते हैं. तो अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स वो सारा दिन बैठ के कोडिंग करते हैं. एंड इफ यू आर वेरी गुड एट टेक और यू आर इन मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट में तुम डिफरेंट लेवल्स पे जब ग्रो करोगे, डिफरेंट टीम्स ज्वाइन करोगे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये तुम काफी डिफरेंट टीम्स ज्वाइन कर सकते हो. तो अगर तुम पहले लेट्स से मैं अभी MNC में हूँ, मैं उसके बाद मैं ट्रेड में चला गया, उसके बाद मैं लिक्विडिटी में चला गया, उसके बाद मैं ट्रेजरी में चला गया. So you build a cross-functional knowledge base and then you go to the next level in the organization. तो तुम्हारे जो growth opportunities हैं वो from what I see either very good in tech or you do a MBA from good college and join straight in the management and grow from there. So currently I think my job is very fulfilling and I like it and I think I would recommend कि अभी आपने अगर बिल्कुल शुरू ही कर रहे हो सो अपना नॉलेज वो मतलब अभी तो तुम पढ़ाई शुरू करोगे, उसके बाद कैट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे को लगती है जो नॉलेज से भी ऊपर है वो है तुम्हारी स्ट्रैटेजी. तो स्ट्रैटेजी पेपर कैसे देना है, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट आई लर्न फ्रॉम सर एंड हिज टीम. कि मतलब तुम पेपर के अंदर जाके ऐसे नहीं, मतलब बीकॉम का पेपर नहीं होता कि 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर 2 पेज भरने हैं, 15 नंबर के क्वेश्चन के अंदर 6 पेज भरने हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करो, 32 शीट पूरी भर जाएंगी, तुम्हारा पेपर खत्म, फेंक के आ जाओ. ठीक है, तो इसके अंदर तुम क्वेश्चन जो कर रहे हो उससे इंपॉर्टेंट होता है तुम क्वेश्चन कौन सा नहीं कर रहे. सो मैं मतलब मेरा पहला सेक्शन बहुत अच्छा हुआ था, उसके बाद मैं ओवर कॉन्फिडेंस में जो मैंने कभी नहीं किया था वो मैंने 2 क्वेश्चन पे आधा घंटा लगा दिया आउट ऑफ अ सेक्शन ऑफ 32 क्वेश्चंस. ठीक है, which had never happened to me, but जब तुम एक बार स्ट्रैटेजी आ जाती है खेलने के, मतलब तुम पेपर कर कैसे रहे हो, उसके बाद एवरीथिंग मतलब तुम्हें 70% टाइम तो स्ट्रैटेजी के ही है. 10-10 क्वेश्चन तो हर एक सेक्शन में बहुत इजी होते हैं, जिसके लिए तुम अभी अगर पेपर दोगे तो तुम 10 क्वेश्चन तो निकाल ही लोगे. उसके ऊपर वाले जो होते हैं 2000 और बोनस क्वेश्चंस वे आपके नॉलेज और तुम्हारा को कितना आगे पढ़ा है वो काम आता है. तो अभी तुम अपना पढ़ाई शुरू करो, स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट करो एंड अपना जनरल नॉलेज बेस पढ़ाओ. ये नहीं कि मतलब यू डोंट जस्ट गो थ्रू द पॉइंटर्स ऑफ एवरीथिंग, गो थ्रू रीजनिंग ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, अब अगर जैसे तुम बजट की बात कर रहे थे तो वन प्लस पॉइंट आई सॉ इन दिस बजट वाज कंटिन्यूटी. ठीक है, तो 3 साल पहले एक थीम बिल्ड हुई केपेक्स. तो केपेक्स के ऊपर कंटिन्यूटी चल रही है कि मतलब हर साल दे आर एक्सपैंडिंग केपेक्स, न्यू टैक्स रेजिम के अंदर दे आर इनकरेजिंग मोर पीपल टू गो इनटू न्यू टैक्स रेजिम. तो ऐसे ये जब तुम्हें तब पता चलेगा तुम पैटर्न्स सीखोगे सब चीज के, तुम पढ़ोगे. तो अभी के लिए तुम जनरल अखबार अगर इकोनॉमिक टाइम्स खोल के पूरा ना पढ़ो, चाहे तुम इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट, उसकी ऐप डाउनलोड कर लो, उसके अंदर जो बेसिक आर्टिकल आते हैं उसको ऊपर से पढ़ लो. जनरली द आर्टिकल्स डोंट टेक मोर देन 2 मिनट्स. ठीक है, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट में शौक है तो उसको वैसे ही डिफरेंट कंपनीज और जनरल इकोनॉमी को पढ़ना चाहिए. तो वो देखो, अपना बेसिक पढ़ाई करो एंड स्ट्रैटेजी बिल्ड करो. GD वगैरह जो है that can take a backseat right now, but when the time comes and you step into the GD, you'll already have a good knowledge base to work on, and the biggest strength you have is you are a commerce grad, so use that strength in everything. जब तुम जब इंटरव्यू देने जा रहे हो, जब तुम वो करने जा रहे हो, GD देने जा रहे हो, तो हमेशा नॉलेज बेस जो है that is your most powerful weapon. तो हमेशा उसको यूटिलाइज करो. एंड कभी भी इंटरव्यू अगर तुम देने जा रहे हो तो कभी अननर्व नहीं होना. तुम्हें अगर 20 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 20 के 20 भी नहीं आते और तुम कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द अदर इंटरव्यूज.
So in MDI only, my panel was very rude. They and मेरे से पहले 2 3 लोग रोते हुए बाहर आए. उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं नेशनल गेम्स जो अभी हुई हैं उसके अंदर 50 मीटर राइफल के अंदर गोल्ड मेडल किसको मिला है. ये किसी को नहीं पता हो सकती. ठीक है बात. इट इज वेरी रेयर एनीवन विल नो इट. उन्होंने बोला ओपेक. वो बंदा कहता हाँ ओपेक तो आता है मेरे को. वो पूछ रहे ओपेक का प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, उसके अंदर क्या इलेक्टोरल पावर्स हैं, ये किसी को नहीं आती है चीजें. ठीक है. तो तुम अगर वहां पे बैठ के तुम मतलब अपनी हिम्मत हार गए और तुम बोलोगे चलो भी ये तो खत्म हो गया, तो काम खत्म है तुम्हारा. तुम्हें उसके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाना, तुम्हें बोलना है कि यार सॉरी सर ये मेरे को नहीं पता है. एंड ही एक्सपेक्ट्स कि ये तुम्हें नहीं पता है. बट व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट इज इन योर हैंड. तुम उसके बाद कैसे रिकवर करते हो, तुम उसके बाद कैसे आंसर करते हो, वो सब तुम्हारे हाथ में है. कोई लोगों से केमिकल कंपाउंड क्या वो पूछ रहे थे कि मतलब ये वाले केमिकल कंपाउंड को ये वाले के अंदर मिक्स कर दो तो इसका क्या नया केमिकल बनेगा. तो मतलब ऐसी चीजें नहीं आती किसी को भी. दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो, दे जस्ट वांट टू सी हाउ यू रिएक्ट टू इट. जनरली व्हाट इज बेस्ट इज यू बिल्ड अ स्टोरी. मैंने अपनी एक स्टोरी बनाई, तो उस स्टोरी के अंदर ही तुम घूमते रहते हो सारे इंटरव्यू में. ठीक है. तो यू मतलब मैंने ऐसे शुरू किया, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ. इफ दे फाइंड यू इंटरेस्टिंग दे विल आस्क क्वेश्चंस अबाउट यू. इफ दे डोंट फाइंड यू इंटरेस्टिंग दे विल आस्क जनरल शिट फ्रॉम यू. सो अपना तुम एक पर्सोना ऐसा बनाओ, तुम उनको अपनी एक ऐसी स्टोरी दिखाओ जो एक इंटरेस्टिंग लगे सामने वाले इंसान को, तुमसे वो बात करना चाहे. तब वो इंटरव्यू नहीं होता, तब वो एक डिस्कशन होती है तुम्हारी कि वो तुमसे पूछ रहा है अच्छा तुमने ये क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया. तो मैं उनको बता रहा हूँ जनरली जैसे टू फ्रेंड्स टॉक के ये सिचुएशन थी तो मैंने ऐसे किया, ये ऐसे हुआ तो मैंने ऐसे किया. तो तुम मतलब उसको एक अपनी पर्सनैलिटी अपना ये सब कुछ इतना अच्छा बना लो कि उसको कहीं पे जाने की जरूरत ना पड़े. बाकी काफी जेनरिक वो था. दिस वाजंट आई थिंक बट Very good. Very good. I'll just add one line to what he said, interview se related. This was a line by director of a IIM, who is right now also in the governing board of another IIM. I met him somewhere. So he shared, you may be right on 10 out of 10. We may still reject you. You may be wrong on 10 out of 10. We may still select you. Because we are checking attitude here in the interview. Aptitude is already checked in the test. So as he said, it is very critical. So now I welcome Noor to come and talk about her journey